Okay, so how are you all? So first thing is, have you all seen your admit cards for just? Yes, Yes, भैया. yes. Okay, so this year Yes. exam is online, CBT computer based mode. No one was expecting that. Uh, have you all given the mock test? हाँ मौसम बताओ. भैया कोलकाता एंड खड़गपुर का एडमिट कार्ड अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। हो जाएगा कोई बात. नहीं, वो सब हो गया है. हो गया है जी. ओके भैया। ठीक है. सो सबने मोक टेस्ट दिया है उनका, उनकी वेबसाइट पे जो दिया है, Yes, भैया. एक बार वो देख लो. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, जैम से थोड़ा सा अलग है उनका पोर्टल. ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं उसमें. उसका कोई लेना, आपको बस पोर्टल देखना है ना कि कैसा होगा. तो उस पोर्टल को देख लो एक बार अच्छे से. हाँ, कहाँ पर कैलकुलेटर है, कहाँ पर क्या है. ठीक है, कैसे आगे पीछे ओके जाना है, भैया. ये तो ज़रूरी है. ठीक है. अब क्या हो गया है थोड़ा सा, अब क्या हो गया है, थोड़े से चांस मुझे लगता है कि NAT क्वेश्चन सही होने के बढ़िया हो गए हैं. क्या होता है कि 4 डिजिट्स नहीं है ना, अब आपको 0 0, अब आपको रेंज में आंसर लिखने के लिए मिलेगा. 1 डेसिमल प्लेस इंटीजर ऐसा करके लिखने को मिलेगा, तो थोड़ा बेटर है. लेकिन थोड़ा सा आपको पता ही है कि ऑनलाइन में क्या होता है, एक साथ सब क्वेश्चन नहीं दिखते हैं, है ना. थोड़ा दिक्कत रहती है उसमें, लेकिन इट्स स्टिल आई थिंक इट इज़ गुड. सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है आपके लिए. वाई? बिकॉज सारे एग्ज़ाम ऑनलाइन है, तो ये एक प्रैक्टिस अच्छी है और ये क्वालिफाई भी आपको करना है. तो आज हम करते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर. अभी वन डायमेंशन की बात करते हैं सबसे पहले. तो हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर में पैराबोलिक पोटेंशियल गिवन होता है. मींस द पोटेंशियल विच डिपेंड्स अपॉन स्क्वायर टर्म x square. So this kind of potential you all have seen. Okay. The most important is energy eigenvalues. So energy eigenvalues are n plus half h cut omega, और n की वैल्यूज जो होती हैं 0 1 2 3 अप टू होती है. ओमेगा इज something which is the angular frequency of oscillations of your harmonic oscillator. The very important thing I want to mention here is, if you put n equals to 0 and you get an energy h cut omega by 2. So this is called 0 point energy. Why? Can anyone tell me why this is called 0 point energy? What is the significance of Because 0? the n Because equals to 0 means the quantum number is 0, that is it is in the ground state, and still its energy is not 0, as we can expect from the classical theory. This is the significance of this 0 point energy, I think. okay. So why do you expect that its energy should be 0 in ground state? It is in classically, because classically when there is no vibration, so it is in rest, that we can say it is in rest. So that's why in that case, in classically we can expect its energy is 0. So you are saying that in 0 point level there is no vibrations. That is what you are saying. Yeah, But sir. Yeah. the term omega is coming here. The omega in itself signifies the you mean the vibrations. So but then if there is omega is more, it would have been more. So if their Yes, sir. vibrations are not, then how this energy level will identify that I have to pick this omega only? You understand my question? Yes, sir. Actually, in this case, quantum mechanically, it is possible to have 0 point energy at ground state, but I mean classically, it is not possible. Okay, sir. In this quantum mechanically, it is possible. I'm saying this. That means the significance at 0 point that is at ground state, it has also the something energy that is different from 0. But it does not mean na, when it is in n0 state there are no vibrations. This is not a meaning na. Vibrations are Yes, still sir. there. This is So
vibrations are still there. So if vibrations are there, energy should be there. So what is the big thing? Why classical mechanics stops to have a 0 point energy? Sorry, sir, I don't know about this. Can anyone tell me why classical mechanics don't allow 0 point energy, but quantum mechanically it should have some? We should have some 0 point energy. You all have a knowledge of oscillator, na? Quantum mechanically, maybe because like uncertainty principle. Okay, but how and what does it say? Even at 0 Kelvin, it will have some energy. Means it's uncertain. Uncertain. What? So you have to answer the question that why quantum mechanically our minimum energy is not 0. This is a question. The uncertainty principle between energy and time. From there, if energy is certain, then time should be infinite. So from there, the width of the energy level is no width, matlab tends to 0. So it's that way. When temperature tends to 0, all the particles of a system by वो ground state में जाते हैं. लेकिन 0 क्यों नहीं है? क्लासिकल मैकेनिक्स में ग्राउंड स्टेट 0 होता है. यहाँ पर 0 नहीं है. Treat particle as wave in quantum mechanics. उससे क्या होगा? उससे होगा क्या, ये तो बताओ. Its momentum will not be certain. It's like momentum is not certain and energy something like that. सुपरपोजिशन की वजह से. तो अभी एक ही स्टेट मान ली. चलिए सब भूल जाइए, सब भूल जाइए और ये बताइए कि ये आपका है हार्मोनिक ऑसिलेटर इन क्लासिकल मैकेनिक्स, यही होता है ना सबसे सिंपल. ये तो सब क्या यस फ्रेंड. ये है, ये तो सबको एक मान लो और इजी कर लो. एक ही मान लो ये दीवार के साथ कनेक्टेड है और ये के है और ये एक्स है और ये मास है. तो व्हाट इज एनर्जी? हाफ क्या होती है एनर्जी इसकी, बताओ. हाफ m x स्क्वायर प्लस हाफ m x नॉट स्क्वायर प्लस हाफ k x स्क्वायर. अरे यार एक सिंपल एक्सप्रेशन भी होता है. k a square होता है ना, a इज एन एम्पलीट्यूड. यस सर. या तो ये सिंपल होता है ना ये. तो अब मुझे बताओ कौन कह रहा है कि 0 होगी, मतलब मिनिमम एनर्जी 0 हो सकती है, और कैसे हो सकती है ये बताओ. 0 क्यों है एनर्जी, और डिफरेंट एनर्जी लेवल्स क्या हैं इसमें? देखो तुम बोल नहीं रहे तो मैं जल्दी से बोल देता हूँ. क्या है कि मिनिमम क्या है ये, इसमें मिनिमम क्या होगा कि ये रुक जाए. ठीक है, अगर रुक गया तो क्या होगी एनर्जी? 0 होगी. एनर्जी 0 है तो क्या है, मोमेंटम भी 0 है ना. ये तो पता है. एनर्जी और मोमेंटम, एनर्जी 0 तो मोमेंटम भी 0. ठीक है. यस फ्रेंड. Yes, sir. क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में सब के सब लेवल्स डिस्क्रीट हैं. इसमें क्या है, सब के सब लेवल कॉन्टिन्यूस है. कैसे, मतलब एक ही वैल्यू कुछ भी हो सकती है. 0 टू इन्फिनिटी कुछ भी रखो. ठीक है, तो सबके सब लेवल्स पॉसिबल हैं, तो सबके सब हैं, तो इट हैज अ इन्फिनिटली अनकाउंटेबली इन्फिनिट एनर्जी लेवल्स. ठीक है, ये तो सबको पता है, हम सबको पता है. अब मैं पूछ रहा हूँ कि एनर्जी 0 तब आई जब वो रुका हुआ है. क्वांटम मैकेनिक्स में रुका नहीं है.
रुक नहीं पा रहा वो, मतलब कि जीरो एनर्जी नहीं है, मिनिमम कुछ एनर्जी तो है ही, मतलब मिनिमम मोशन तो करना ही पड़ेगा उसको, क्वांटम मैकेनिक ऑसिलेटर को मोशन कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, मतलब उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम तो होना ही चाहिए। ठीक है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, डेल्टा एक्स पी डेल्टा एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बट। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि डेल्टा पी जीरो है, मतलब पी जीरो है तो तुम्हें डेल्टा पी जीरो हो गया ना तुम्हारा, यस डेल्टा, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इंफिनिटी। तो अब आपको क्वेश्चन ये पूछना है कि क्या आपका डेल्टा एक्स इन्फिनिट हो सकता है क्या, नहीं, क्यों नहीं हो सकता No. बताओ, क्या रीजन नहीं है कि नहीं हो सकता, तो ग्राउंड स्टेट में है ना, तो फिर क्या हुआ, इनफाइनाइट। भैया ये इसको यहाँ के आपके एलो नहीं करेगा ना, स्प्रिंग कांस्टेंट उसको एलो नहीं करेगा ना, मतलब एक क्यों? बाउंड्री होगी इसकी। बाउंड्री के किसने बोला है, हार्मोनिक ऑसिलेटर की बाउंड्री नहीं होती कोई, होती है क्या, यहाँ पे कोई बाउंड्री है, यहाँ पे बताओ, एक्स को कहीं भी ले जाओ, कितना भी ले जाओ, इन्फिनिट पोटेंशियल वेल की होती है, इसकी होती है क्या, मुझे तो नहीं पता होती है। नहीं। तो फिर डेल्टा एक्स तो इन्फिनिट हो सकता है, जो भी आंसर आप अनसर्टेनिटी में दे रहे हैं वो तो ठीक है, वो तो सेटिस्फाई हो रही है अनसर्टेनिटी, कोई रोक नहीं रहा उसको। कौन रोक, भैया यदि मोमेंटम जीरो हो जाएगा तो यहाँ एनर्जी भी जीरो हो जाएगी ना फिर। नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ एनर्जी जीरो ही करनी है, हो क्यों नहीं रही, भैया तो फिर दोनों सर्टन हो गए ना, मोमेंटम भी और पोजीशन भी एक साथ में, जो कि नहीं पोजीशन हो सकता। अनसर्टन हो गई, अनसर्टन हो गई पोजीशन, मान लो एनर्जी तुमने जीरो कर दी और पोजीशन अनसर्टन हो गई, हो सकती है ना, इन्फिनिटी भी हो सकती है पोजीशन, तुम्हारा एक्स अगर तुम वेरी करवाओगे यहाँ तो कहाँ से कहाँ तक करवाओगे मुझे बताओ, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी करवाओगे ना, यस। यस भैया। यस तो भैया। एक्स तो इन्फिनिटी जा सकता है, तो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है जब एनर्जी जीरो है तो एक्स इन्फिनिटी है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, अनसर्टेनिटी का कुछ रोक थोड़ा भी है इसमें, क्या ऐसी समस्या हो गई कि क्या ही हो गया ऐसा, क्या प्रॉब्लम आ गई, हाँ जी, देखो तुक्के मार दो, 3-4 गलत तुक्के मार दो, फिर मैं आंसर बता दूंगा। भैया एनर्जी से ट्राई कर सकते हैं, मतलब एनर्जी जीरो है तो एनर्जी एंड टाइम का जो रिलेशन है उसमें टाइम इन्फिनिटी होगा तब, तो टाइम तो इन्फिनिटी होगा। हाँ, ठीक है, फिर टाइम इन्फिनिटी होगा मतलब वो स्टेट में वो इनफाइनाइट टाइम के लिए रुकेगा, तो इससे हम बोल नहीं सकते कि वो ट्रांजिशन करेगा, मतलब एक स्टेट से वो दूसरे स्टेट में नहीं जा सकता, क्योंकि उस स्टेट में उसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट है, तो वो पॉसिबल नहीं है इसलिए। नहीं तो जाना ही क्यों है, ऐसा कौन बोल रहा है क्वांटम मैकेनिक्स में आके आपको दूसरी स्टेट में जाना ही पड़ेगा, जब हम लोग बाहर से एनर्जी देंगे तो उसको इन्फिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ना, ये बोल रहे हो ना तुम, मतलब वो ट्रांजिशन ही नहीं करेगा, क्योंकि उसका टाइम पीरियड इन्फिनिटी, मतलब उसको हम जितना भी एनर्जी दे वो ट्रांजिशन नहीं करेगा ना तब, तो जब टाइम पीरियड। ना करे, इससे कोई क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ा ब्रेक हो रही है, भैया अगर एक्स एक्स अगर इन्फिनिटी जा रहा है ना, तो इसको वहां तक जाने के लिए इन्फिनाइट टाइम लगेगा, तो ये पीरियाडिक लग नहीं जाएगा, होगी, अरे ये लग नॉन जाएगा, पीरियाडिक होगी ना फिर। अरे इन्फिनिट टाइम पीरियड होगा ना इसका, ये बोल रहे हो ना तो तुम, हाँ भैया, बट अगर इन्फिनिट टाइम पीरियड है तो ये फिर नॉन पीरियाडिक है ना भैया, फिर ये पीरियाडिक होगी नहीं। क्यों, टाइम पीरियड पे कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ा नहीं है कि फिनाइट टाइम पीरियड ही होना चाहिए, प्लैंक्स के थ्योरी के बारे में सोचो थोड़ा सा ये निकल हाँ हाफ एच कट ओमेगा, मतलब
n प्लस हाफ होते हैं, तो n अगर 0 कर दूं तो हाफ एक टर्म रह जाता है एनर्जी के लिए। हाँ, तो क्या प्लैंक्स ने क्या बोला था, मतलब प्लैंक्स ने 0 पॉइंट एनर्जी नहीं दी थी, ठीक है, प्लैंक्स हाँ के अकॉर्डिंग कोई 0 पॉइंट एनर्जी नहीं है, उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी लेवल्स हैं वो एन एच का एटॉमिक है। हाँ तो ये हाफ को ऐड करने का क्या पंगा था, मतलब ये पूछा जाएगा, ये मेरे हिसाब से डायरेक्ट क्वेश्चन है ये इंटरव्यू का, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। मैथमेटिकली पता है किसी को? मैथमेटिकली तो बहुत ही और भी मतलब कोई सेंस नहीं बनती इस बात की, क्योंकि हर्माइट पॉलिनोमियल n इक्वल्स टू 0 पे ये देता है, इस वजह से ये होता है मैथमेटिकल आंसर। अरे यार कल बता रहा था मैं तुम्हें, कल बता रहा था, याद करो, कुछ इन्फिनिटी पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेव फंक्शन के बारे में सोच लो थोड़ा सा। अनडिफाइंड होगी इंफिनिट पे, क्या करता है वेव फंक्शन, मतलब वेव फंक्शन 0 होगा वहां पे इन्फिनिट पे। तो कनेक्ट करो ना इसको इसके साथ। चलो ठीक है, सोच कर आना, ठीक है, हिंट भी दे दिया है मैंने, तो ये आंसर सोच कर आना कि इस इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है। भैया अगर वेव फंक्शन 0 है ना, तो आइगन वैल्यूज आएंगी ही नहीं, यानी कि हमें एनर्जी की कोई वैल्यू आएगी ही नहीं अगर वेव फंक्शन ही देख 0 है। भाई, आराम से समझ इस बात को, अनसर्टेनिटी का इन्फिनिटी होना का मतलब होता है कि तुम्हें नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इन्फिनिटी पे है ही, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज इन्फिनिट का मतलब होता है कि तुम्हें बिल्कुल ही पोजीशन के बारे में कुछ नहीं पता कि वो कहाँ पर है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इनफाइनाइट पे है, समझता है ये बात को? यस भैया। ठीक है, चल, तो इसके बारे में सोच कर आना कि, एक सेकेंड रुकना, हाँ जी, इसके बारे में सोच कर आना कि क्यों ये 0 पॉइंट एनर्जी इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है, कैसा क्या हुआ है, सोचना फिर गूगल कर लेना, ठीक है। तो अब जल्दी से बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। क्या है, ये तुम्हारे एनर्जी लेवल्स हैं, 0 1 2 3 ऐसा एनर्जी लेवल्स पॉसिबल हैं तुम्हारे। अब इसके आइगन स्टेट्स जो निकलते हैं ना, वो हर्माइट पॉलिनोमियल की फॉर्म में निकलते हैं, लेकिन हर्माइट पॉलिनोमियल के फॉर्मूलाज तो मैंने लिखे हैं, लेकिन ये थोड़े से मुश्किल रहते हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर के ऊपर आते हैं, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत ही ईजी है, बहुत बढ़िया है। वो क्या है? सबसे पहले आप इन वेव फंक्शंस को भी थोड़ा सा ध्यान से देख लो। देखो जी, जब आप ग्राउंड स्टेट में है तो आपका वेव फंक्शन कहाँ पर मैक्सिमा दे रहा है, ये सब अच्छे से देखो, कहाँ पर मैक्सिमा दे रहा है n इक्वल टू 0 के लिए। अरे बोलो, दिख रहा है यहाँ पर सामने, दिख रहा है तुम्हारे? हाँ भैया दिख रहा है। कहाँ दे रहा है? x=0 पे। हाँ, x इक्वल टू 0 पे दे रहा है, ठीक है। और जब जब तुम बढ़ते चले जाओगे, जब n इक्वल टू 1 पे करोगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पे मिनिमा क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। मिनिमा हाँ, तो फिर मैक्सिमा होगा, फिर होगा, तो नंबर ऑफ नोड्स का भी याद कर लो। n इक्वल टू 0 में कितने हाँ भैया। नोड्स हैं? 0 0। कोई नहीं, n इक्वल टू कोई 1 नहीं में भैया। 1 1 1। n इक्वल टू 2 में कितने नोड्स का फॉर्मूला क्या होगा फिर? n n minus minus 1 1 n अरे n ही n होगा ना, n 0 से स्टार्ट हो रहा है तब तो n ही। n होगा ना, हाँ सही है, n है, n हाँ ठीक है। 0 से नंबर ऑफ स्टार्ट। नोड्स इज n, ठीक है। और मिनिमा और मैक्सिमा ऐसे वेरी करता चला जाता है, ठीक है जी। क्या कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पर मैक्सिमा होने का क्या मतलब होता है, मतलब कि वेव फंक्शन यहाँ पर मैक्सिमम है तो इसका क्या मतलब है? तो probability of इसका finding the मतलब particle is more। probability हाँ वहाँ जी, पे पार्टिकल पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मतलब यहाँ पर पार्टिकल मिलेगा, मतलब तुम मेजरमेंट कर रहे हो मान लो 1000 बार, तो 800 बार यहीं पर मिलेगा, ठीक है। इस केस में क्या है, इस केस में क्या मतलब है?
सेकंड केस में क्या मतलब किस है? केस में? सेकंड केस में n भैया equals to 1 मतलब में। हाँ, एट x equal to 0 probability of finding the particle is 0. ठीक है। और बाकियों पे आधे आधे है, मतलब जितनी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है उतनी ही यहाँ पर है। ये तो समझते हो ना, नेगेटिव मतलब स्क्वायर हो जाएगा तो वो एक ही मतलब होता है। Yes, भाई. यहाँ Yes भाई. यहाँ पर जितनी प्रोबेबिलिटी है उतनी यहीं पर है, यहाँ पर इस केस में तीन जगह पर उतनी है। ठीक है जी, चलो ये सब आप समझते हैं। तो अब कुछ फॉर्मूलाज जो है ये जो तो आपको पता ही है, फॉर्मूले फॉर स्टेट्स। देखिए क्या है फॉर्मूले फॉर स्टेट्स। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि स्टेट्स क्वांटम डायरेक्ट नोटेशंस में अगर करनी हो तो ऐसे रिप्रेजेंट होंगी। सब समझते हैं इस बात को? इसका मतलब समझते हो? Yes, भाई. इसका मतलब है कि ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये n equals to 2 स्टेट है एंड सो ऑन। ओके, नाउ देयर इज अ सेकंड थिंग इज द टू स्टेट्स आर ऑर्थोगोनल। ये भी पता है, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा एंड Yes, सो ऑन। भाई. ये सब पता है। इसका क्या मतलब, Yes, अगर भाई. इसको मैथमेटिकली मतलब चलो हाँ ये मतलब आपको पता है, तो इसका आंसर 1 होगा, इसका भी 1 होगा Yes, भाई. एंड सो ऑन। ये सब आपको पता है, फॉर्मूले पता है। ठीक है, सिंपल बात है। तो अगर ये फॉर्मूले पता है तो जल्दी से हम आ जाते हैं अलजेब्रिक टेक्निक के ऊपर। अलजेब्रिक टेक्निक्स कैसे किया जाता है अलजेब्रिक, मतलब कि हर टाइम हर्माइट पॉलिनोमियल्स को हैंडल नहीं किया जा सकता, तो कैसे हम अलजेब्रा को यूज़ कर हम अपनी एक टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो दो ऑपरेटर्स डिफाइन किए जाते हैं, नए ऑपरेटर्स, इसको बोलते हैं लैडर ऑपरेटर्स। ठीक है, लैडर ऑपरेटर, तो इसको बोलते हैं अप लैडर या पॉजिटिव लैडर ऑपरेटर या अप लैडर ऑपरेटर। Raising operator. हाँ, रेजिंग भी बोल देते हैं, ठीक है जी। और दूसरे को बोलते हैं लोअरिंग या डाउन लैडर ऑपरेटर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं दोनों का फॉर्मूला एक ही साथ लिख देता हूँ, मतलब प्लस और माइनस की टर्म में लिख देता हूँ। तो इसका फॉर्मूला होता है 2h कट m ओमेगा अंडर रूट। अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस आएगा, अगर माइनस है तो प्लस आएगा, मतलब कि प्लस ऑपरेटर के लिए माइनस है और माइनस ऑपरेटर के लिए प्लस है। अयोटा p इज अ मोमेंटम एंड m ओमेगा x। अब ये फॉर्मूला मुझे नहीं लगता कि कहीं पर खास यूज होता है, कहीं पर इतना खास यूज नहीं होता, लेकिन आप रख लीजिए, इसको याद करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब ये रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर करते क्या हैं वो देखना बहुत जरूरी है। इफ यू विल अप्लाई द रेजिंग ऑपरेटर ऑन जीरो स्टेट, let's say first on n state, so you will get n plus 1, and if you apply on negative you get root n minus 1. So let's apply this so that it is clear. So let's say you apply it on zero state, so you will get the state 1. According to this, n plus 1 is state 1, and what is 0 plus 1? It is 1. So you will get 1 multiplied by, so you will get state 1. या इसको नहीं अंडरलाइन करते, इसको करते हैं। ठीक है, नाउ इफ आई अप्लाई प्लस, यहाँ पे प्लस करना है, अगर यहाँ पे जीरो सॉरी माइनस ऑपरेटर, दिस इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि जीरो से नीचे कुछ नहीं है, तो लोअरिंग ऑपरेटर जीरो को और नीचे नहीं लेकर जा सकता। ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ये जीरो हो जाएगा, मतलब कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे तुम n जीरो डाल दोगे तो आंसर विल बी जीरो। अब अगर तुम 1 के ऊपर लोअरिंग ऑपरेटर कर रहे हो, 1 के ऊपर, तो क्या आंसर आएगा? यहाँ पर 1 डालो, Zero state. जीरो स्टेट आ जाएगी। ठीक है, अब ऐसा ही काम हम 2 के लिए करते हैं, तो क्या आ जाएगा? रूट 2 1 स्टेट।
ठीक है जी। ये दो फॉर्मूलास बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब यूज होंगे ही एक आध क्वेश्चन में तो ये। ठीक है, तो अगर मैं एक लैडर बना के आपको समझाऊं, ठीक है, ये n इक्वल्स टू 0 है, ये n इक्वल्स टू 1 है, ये n इक्वल्स टू 2 है। अगर तुम यहाँ पर a प्लस ऑपरेटर लगाओगे तो वो स्टेट को प्लस में ले जाएगा, फिर लगाओगे तो एक बार और ले जाएगा, फिर लगाओगे तो एक बार और ले जाएगा, एंड सो ऑन। और अगर यहाँ से तुम माइनस ऑपरेटर लगाते हो तो एक एक स्टेट नीचे आते चले जाओगे। ये है इसकी ये फॉर्मूला ये कर रहा है। अब सेकंड फॉर्मूला जो काम का है वो है कि x और p को, मतलब यहाँ पर क्या था, a प्लस का ऑपरेशन तो हमें पता है, लेकिन अगर हमें पूछ ले कि x और p क्या है, तो अगर हम x और p को a प्लस और a माइनस की फॉर्म में लिख दें तो हमारे लिए बहुत फ़ायदे का काम है, मतलब वो हमें थोड़ा सा एक्सटर्नल बेनिफिट मिल जाएगा, तो वो काम हम करते हैं। ठीक है, चलो लिखें उसको। ओके, लेट्स राइट इट। फॉर्मूला इज x इक्वल्स टू h कट बाय 2 पाई m ओमेगा ना, लेट मी जस्ट चेक इट। यस भैया। h कट बाय, एक बार चेक कर लेते हैं कंफर्म करने के लिए। x को, तुम्हारा x डिफाइन होता है, आगे वाला कांस्टेंट ना थोड़ा भूलता है हमेशा ही। यस, सो h कट बाय 2 पाई m 2m ओमेगा, h कट 2m ओमेगा, h कट बाय 2m ओमेगा a प्लस प्लस a माइनस। तो मेन बात जो याद रखने वाली ज़्यादा होती है वो ये है कि x जो है वो a प्लस और a माइनस का एडिशन होता है, और p जो है वो ऐसा ही एक कांस्टेंट होता है, h कट बाय एयोटा h कट बाय नो सॉरी h कट m ओमेगा बाय 2, h कट m ओमेगा बाय 2, और ये इन दोनों का माइनस होता है। ये ऑपरेटर्स हैं तो ऑपरेटर्स का साइन लगा देते हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो अब इसकी थोड़ी सी हम एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं x को ऑपरेट कराऊं 0 के ऊपर, तो x को 0 के ऊपर ऑपरेट करवाने के लिए आपको बहुत थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर आपको हर्माइट पॉलिनोमियल से निकालना पड़ेगा, लेकिन इस मेथड से बहुत इजी हो गया। कैसे, देखो, तुम क्या लिखो, h को अपनी उसकी वैल्यू लिख दो, h कट बाय 2m ओमेगा a प्लस a माइनस 0। अब मुझे बताओ जब a प्लस 0 पे एक्ट करेगा तो आंसर क्या आएगा? 1 और जब ये करेगा तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। 0। ठीक है, तो आंसर आ गया ये। अब सेम काम तुम p को 0 के ऊपर ऑपरेट करवा कर देख लो, आयोटा 2 ओमेगा बाय h कट, उल्टा है ना? नहीं, आयोटा h कट m ओमेगा, h कट बाय 2। तो जब मैंने याद किया था, तो कैसे किया था, ये कर लिया था याद। तो क्या किया था कि मोमेंटम में m ओमेगा को ऊपर ले जाना है, m ओमेगा को ऊपर ले जाना है। ठीक है, बाकी फॉर्मूला सेम रहता है। तो a प्लस माइनस a माइनस, ये अपने फॉर्मूला शीट में लिख लो, एग्जाम से 2 दिन पहले जाने से पहले ना एक बार और अच्छे से रट लेना। ठीक है, रट कर जरूर जाना इन फॉर्मूलास को, एक्स पी का फॉर्मूला और ये वाले फॉर्मूला रट कर जाना, यूज होते हैं। ठीक है, अब ये है, अब a प्लस को 0 पे करोगे तो वही फिर से आंसर ये यहाँ पर आ गया 1, ये तो आंसर 0 दे देगा। तो सबको समझ आ गई ये बात? इतना समझ आ गया? हार्मोनिक ऑसिलेटर, यस भैया। अलजेब्रिक। चलिए अब मैं थोड़ा सा हर्माइट पॉलिनोमियल पे वापस आता हूँ। हर्माइट पॉलिनोमियल्स, अगर मान लीजिए आपको एग्जैक्ट स्टेट्स निकालनी ही पड़ेगी विद इन फंक्शंस, विद फंक्शन, जैसे आपने विद पोटेंशियल वैल्यू में निकाला था। कैसे निकाला था? अंडर रूट 2 बाई ए साइन n पाई एक्स बाई एल। तो ये फॉर्मूला अगर आपको निकालना ही पड़े तो आप हर्माइट पॉलिनोमियल से निकालते हैं। उसका
पूरा का पूरा मेथड ये है, ठीक है, देख लेना, वैसे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये यहाँ पर आपने देख। लिखा है क्या स्क्रीन के ऊपर? कुछ लिखा है आपने मतलब अभी? नहीं नहीं, मैं बस दिखा ही रहा हूँ हर्माइट पॉलिनोमियल्स, ओके ओके। दिख रहे हैं ना? हाँ हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो ये Capital पूरा N हाँ, means what? In Hermite polynomial equation, capital Hn means इट इज अ हर्माइट पॉलिनोमियल्स। हर्माइट इक्वेशन के जो आंसर्स होते हैं वो हर्माइट पॉलिनोमियल होते हैं। हर्माइट पॉलिनोमियल ये है, okay. ठीक है। तो सर जो ये ग्राफ बनाया है आपने वो हार्मोनिक ऑसिलेटर का है ना? वेव फंक्शंस कैसे दिखते हैं, पहले 2-3, यस। ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ से बोलूँ कि अब चौथा वेव फंक्शन बनाओ, तो क्या बना सकते हो? हाँ भैया, कहाँ चौथा से, नहीं, मतलब मुझे बताओ कि 0 पे उसका नोड होगा या फिर एंटी नोड होगा? नोड। एंटी नोड। एंटी नोड। ठीक है, यहाँ से देख लो। चार अब नोड। ऑड बताओ। में ऑड में नोड होता है, इवन में एंटी नोड होता है। तो अब ओके। ऑड नोड होगा ना नेक्स्ट वाले में? यस सर। तो नोड होगा नेक्स्ट वाले में, तो नोड होगा यहाँ पर। तो मतलब कि अब तुम्हें कितने कितने नोड्स बनाने हैं वैसे? 4। 4 बनाने हैं, एक बन गया। अब इधर और इधर कितने बनाओगे? 3 होंगे ना यार, क्या कर रहे हो तुम? n इक्वल टू 3 बना रहे हैं, क्या कर रहे हो? फोर्थ स्टेट इज n इक्वल टू 3 स्टेट, ठीक है। तो 3 बनेंगे, तो एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा, और ठीक है जी। हाँ भैया समझ गया। ऐसी करके स्टेट आएगी तुम्हारी। अरे ठीक है जी, कुछ ऐसी करके स्टेट होगी ना। Yes भैया। 3 नोड्स होंगे और ऐसा करके स्टेट होगा तुम्हारा, एग्जैक्ट रहेंगे। चलो ये समझ गए तुम, ठीक है। और इसके बाद तुम ऑपरेटर एनालिसिस को भी समझ गए। अब हम क्वेश्चन पे दे आते हैं। क्वेश्चन तुम्हारा, जस्ट अ सेकेंड खोलने दीजिए, ये है। तो अब इस क्वेश्चन को रीड करो जरा। कंसीडर द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ये वेव फंक्शन दे रखा है। कल मैंने आपको बोला था कि फाइ मतलब आपका कोई भी जो वेव फंक्शन हो सकता है, स्टेट हो सकता है, वो तुम्हारे आइगन स्टेट्स का सुपरपोजिशन हो सकता है। यहाँ पर फाइ 0 और फाइ 1 आइगन स्टेट्स हैं, ये तो पता है तुम्हें। हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो भी तुमने निकाला 0 1, ये सब उसके आइगन स्टेट्स थे। और तुम्हारी जो जनरल स्टेट है वो उसने सुपरपोजिशन की टर्म में लिख दी है, ये है। सिर्फ 2 ही आइगन स्टेट लिए हैं यहाँ पर, फॉर अ वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एट सम टाइम where phi naught and phi 1 are the normalized ground state and the first excited state respectively. A and B are the real numbers. For what value of A and B, the magnitude of expectation value of x, that is delta x, is maximum. तो अब इस क्वेश्चन को आप करवाओ मुझे, मैं करता हूं। तो आपको वेव फंक्शन दिया है, वेव फंक्शन दिया है a नॉट फाइ नॉट प्लस a1 फाइ 1। मैं कहता हूँ कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी होगा, ठीक है। क्योंकि हम फाइ नॉट फाइ 1 की टर्म में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें हर्माइट पॉलिनोमियल्स आते नहीं है। बात हम सारी डायरेक्ट में करेंगे। और ये ए नॉट जो है यहाँ पर लैडर ऑपरेटर नहीं है, ये क्वेश्चन का नंबर, क्वेश्चन में नंबर दे रखा था। ए नॉट कांस्टेंट। था, ए बी था ना शायद, ए बी है, सॉरी, Yes. ए बी।
कॉन्स्टेंट्स हैं ये, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं ये, ठीक है। चलिए रियल नंबर से, अब उसने पूछा है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स। कल मैंने एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला लिखवाया था एवरेज वैल्यू का, कोई बता सकता है क्या? किसी भी क्वांटिटी की एक्सपेक्टेशन निकालनी है तो कैसे निकालते हैं? ब्रा साई एक्स गेट साई, यही करते हो? यस भी। ओके, तो अब मैंने x का फॉर्मूला क्या लगाया, h कट बाय 2 n ओमेगा, उसको मैं बाहर ले आया, ठीक है। फाई को ऐसे ही रहने दिया और यहाँ पर a प्लस और बीच में a माइनस आ जाएगा और मेरा फाई आ गया। यही है? यस यस है भैया। ओके चलो समझ गए, सब समझ रहे हैं। अब जल्दी से क्वेश्चन कंप्लीट कर दे। अब मैं अलग अलग कर देता हूँ इसको। चलो अब मुझे बताओ a प्लस 5 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर यहाँ a प्लस और a माइनस का मतलब स्केलर प्रोडक्ट लेना पड़ेगा क्या? तो इस पूरे का मतलब पूछ रही हो कि a प्लस a माइनस का ही मतलब पूछ रही हो? a प्लस a माइनस। लोअरिंग एंड रेजिंग ऑपरेटर हमने अभी किया है ना। ओके सर, देख लो। अब मैंने x को लिखा लोअरिंग एंड रेजिंग ऑपरेटर की फॉर्म में, तो ये फॉर्मूला लिखा था, सबको पता है, ओके याद है, सर। अभी जस्ट किया है, ठीक है। चलो तो अब a प्लस को एक्ट कराओ 5 के ऊपर। A one state a 1 स्टेट और plus B second बस state. बी 2 स्टेट। बी देखो रूट 2 सेकंड b रूट रूट 2। 2 आएगा ना, Root 2. ठीक है जी, ये आ गया तुम्हारा। अब इसको करो, इसका तुम ब्रा 5 के साथ करो। अब मतलब कि AB. ठीक है, ये सब समझते हैं। तो जब मैं इसको इसके साथ करूंगा तो आंसर क्या आएगा? AB. जीरो आएगा। अच्छा 0. ठीक है जी, इसका मैंने अभी समझाया कि ये 0 होता है। जब इसको इसके साथ करूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, एक थोड़ा सा मैं डिटेल में कर रहा हूँ, बाकी डिटेल में नहीं करूंगा। 1 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा AB, और बाकी जो तुम्हारा आ गया 1 2 रूट 2 बी स्क्वायर, तो ये भी 0 हो गया क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। ये भी 0 हो गया क्योंकि 0 और 2 बराबर नहीं है। 0 और 2 बराबर क्यों होने चाहिए? बिकॉज ऑल द स्टेट्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ये भी बराबर नहीं है, ये भी, ये बराबर है बस, तो आंसर आएगा ए बी। तो इसका आंसर तुमने निकाल लिया ए बी, ठीक है। अब कोशिश करो कि इसका आंसर निकालने की, थोड़ा सा जल्दी में दे रहा हूँ क्वेश्चन, लेकिन कोशिश करो आंसर निकालने की। इसका भी AB होगा। जब तुम a माइनस 5 के ऊपर लगाओगे तो क्या आंसर आएगा इसमें? देखो इसका B आंसर 0 हो 0 जाएगा, state. इसका 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, सॉरी बी 0 स्टेट, ठीक है, बी 0 B स्टेट आ 0 गई। state. अब जब तुम इसके साथ कर दोगे तो क्या आंसर आएगा? ये सिर्फ आंसर देगा ए बी और ये तुम्हें AB. 0, तो आंसर इसका भी आ गया ए बी। तो तुम्हारा फाइनल आंसर ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ क्या आ गई? h कट बाय 2 m ओमेगा 2 ए बी। 2AB. तो अब उसने पूछा है कि ए और बी की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू मैक्सिमम हो। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और ऑप्शंस को देखते हैं। जब ए और बी दोनों माइनस हैं तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि ए बी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ए और बी दोनों बराबर हैं
तो ए बी मतलब चारों केसेस में ए बी निकाल लेते हैं। पहले केस में ए बी क्या आएगा, -1/2 नेगेटिव -1/2 नेगेटिव -1, इसमें आएगा 1/2, इसमें आएगा 0, इसमें आएगा 0। तो मैक्सिमम किस में आ रहा है, बी। तो आंसर इज बी। समझ आया क्वेश्चन? ओके यस मैम। फॉर्मूलास ऑब्वियसली पता होने चाहिए, सिंपल सी बात है, बट क्वेश्चन तो इजी ही है ना। चलिए यस मैम। किस सबको समझ आया, थोड़ा बहुत आया है, वो याद नहीं हुआ है अलग बात है। कुछ लोग मतलब इसलिए घबरा जाते हैं क्योंकि अभी याद नहीं हो पाया उन्हें, साथ साथ याद नहीं होगा, थोड़ा घर जाकर दोबारा से याद करना पड़ेगा उन फॉर्मूलास को। लेकिन भैया वहाँ पे प्रोसीजर, वही इट वाज नॉट मुझे समझ, हाँ जी वही इट वाज नॉट है। क्या, भैया A+ वाले में वही जो सॉल्व की वहाँ पे रुक क्यों है, वहाँ पे एक बार फिर से बताइए ना। नीचे अच्छा नीचे पूछ रहे हो, यहाँ पर यस भैया, ये A+ वाले ऑपरेटर के। ओके। तो क्वेश्चन मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया, √n है तो n+1 n+1, ठीक है। अब इसको अप्लाई करो 1 के ऊपर। ओके भैया, ओके अब हो गया भैया, सॉरी हो गया, नहीं नो क्लियर है प्रॉब्लम, भैया। ठीक है जी, ओके। और बताओ, और किसी को कोई डाउट हो? I didn't get why it was not a. क्या, वाई Why नॉट it was not a. Option A. वाई इट वाज नॉट ऑप्शन ए? अच्छा वो तुम पूछ, Because अच्छा of तुम पूछ मॉड, modulus. हम्म, Okay, okay. ठीक है जी। 2ab है ना, Yes, यही thank मीन है। ओके चलो और बताओ, अगला करें। भैया हम्म, भैया आप भी इसी तरीके से करते हैं, मतलब आप कोई शॉर्ट ट्रिक्स यूज करते हैं, मतलब कोई स्टेप्स हम देते हैं ना, इस तरीके से ही करते हैं आप? देखो ये मतलब बहुत ही, आप हाँ एकदम यही मतलब मेथड उसमें ही ये है, मेथड ही है। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, लेकिन बस मुझे इतना टाइम नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि मुझे प्रैक्टिस हो चुकी है कि 0 1 बस देखकर कैसे ख़त्म करना है, ओके ठीक है। भाई, ठीक है भाई। बस वही है, प्रैक्टिस है, स्टेप यही है, और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसकी, ठीक है जी। अब हार्मोनिक ऑसिलेटर के हम सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, uncertainty delta x in the position of a particle with mass m in the ground state of harmonic oscillator is this। अब आपसे पूछा गया कि कितनी एनर्जी चाहिए कि उसको एक्साइट कर सकें टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का बहुत उत्तम यूज होगा, और इसके साथ साथ विरियल थ्योरम भी यूज की जाएगी शायद। डेल्टा एक्स आपको दे दिया, ठीक है। आप ग्राउंड स्टेट में हैं, इज इन द what is the energy required to excite the system to the first excited state? The uncertainty in delta x in the momentum in the ground state, आप ground state में हैं और उस ground state में आपकी uncertainty इतनी है, और आपसे पूछा गया कि excite करना है to first excited state, तो energy वैसे कितनी required होगी बताओ? E2 minus E1. एंड इतनी होगी यार, 3/2 h कट ओमेगा माइनस 1/2 h कट ओमेगा इक्वल्स टू h कट ओमेगा। दोनों एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस चाहिए तुम्हें बस। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? हाँ यस भैया। तो अब तुम्हें क्या फाइंड करना है, तुम्हें h कट ओमेगा फाइंड करना है, और इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, ये दी गई है इंफॉर्मेशन, तुम्हें ये मिली हुई है।
तो कैसे करोगे मुझे बताओ। चलो करते हैं। डेल्टा एक्स डेल्टा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट बाई 2, ये बोल रहे हो ना तुम? यस। ठीक है, हाँ जी ठीक है, वेरी गुड। न्यू पेज। अब मुझे ये बताओ डेल्टा एक्स क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन इन एक्स, स्टैंडर्ड डिविएशन इन एक्स। इसको आपने शायद पढ़ा हो कि ये होता है ये। यस मैम। ये होता है, आपने पढ़ा है। और लेकिन ये आपको दे दिया हुआ है, ये आपको गिवन है। ये आपको क्या गिवन है बताओ मुझे? 2h कट बाय m। चलो तो ये आपको निकालने की जरूरत नहीं। डेल्टा पी क्या होता है फिर? डेल्टा पी भैया भी ये रूट आएगा, रूट आएगा वहां पर। हाँ जी, यहाँ पर ये कह रहे। स्टैंडर्ड, हाँ जी। चलिए पी स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ, ये अगर आपको मिल जाए तो काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये आपको होमवर्क ही मिलेगा क्वेश्चन में से, तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि कैसे करना है ये क्वेश्चन। तो P का फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया, एओटा एच कट एम ओमेगा बाई 2 ए प्लस माइनस ए माइनस, ये आपको फॉर्मूला दिया है। ठीक है, अगर अब मैं बोलूँ कि पहले P का निकालो, P की मतलब मीन ऑफ P क्या है? कौन सी स्टेट में? ग्राउंड स्टेट में। कौन सी स्टेट में? ग्राउंड स्टेट में। तो एच का टाइम ओमेगा बाई 2, यहाँ पर 0 रखो, यहाँ पर a प्लस ए माइनस रखो और यहाँ पे भी 0 रख दो। ठीक है, तो क्या ये आंसर 0 नहीं हो जाएगा? सोच कर देखो। देखो ये इसको 1 कर यस देगा, भैया। ये इसको 1 कर देगा, और ये पीछे से 0 जब 1 से टकरेगा तो 0 हो गया। ये इसको वैसे ही 0 कर देगा, तो आंसर क्या आएगा? 0। I didn't get why you put the branch at of 0 here. Because you read the question again. Uncertainty in position of a particle with mass m in the ground state of the harmonic oscillator is this. What is the energy required to excite the system to the first excited state? So you have been asked that your particle, your harmonic oscillator is in ground state. What is the energy required to be in first excited state? And this product you are using. So uncertainty is given in the ground state. So you also have to find uncertainty in momentum in ground state, na? Because this relation is for one state. Okay, now P square. So P square, what will be P square? Minus H, square it. Take the square of this term. Okay, now this is a P, इसका हमने स्क्वायर किया, तो वेरी केयरफुली इस केसेस में स्क्वायर करना होता है। हाउ? ये देखिए, जब ऑपरेटर्स को स्क्वायर करते हैं ना, तो बहुत केयरफुल रहना होता है। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा? a प्लस स्क्वायर प्लस a माइनस स्क्वायर प्लस a प्लस a माइनस, सॉरी, माइनस a माइनस a प्लस। तो 2a प्लस a माइनस मत कर देना, समझे बात को? यस मैम। इस बात को समझे हो? ये स्क्वायर किया है मैंने, तो अब तुम्हारा पी स्क्वायर क्या आएगा? पी स्क्वायर तुम्हारा आ गया a प्लस स्क्वायर a माइनस स्क्वायर a प्लस a माइनस a माइनस a प्लस, क्योंकि ये दोनों टर्म्स बराबर नहीं है, ये दोनों अलग हैं। ठीक है, अब ये पी स्क्वायर का मीन नहीं है, ये सिर्फ अभी पी स्क्वायर है। अब पी स्क्वायर का मीन करते हैं।
तो पहले टर्म की वजह से 0 होगा। क्या इस बात को आप समझ पा यस रहे हैं? भैया। क्योंकि ये इसको 2 कदम ऊपर कर देगा, ये 0 से 1 और 2 कर देगा, और पीछे से जब 0 आकर टकरेगा तो 0। अब ये इसको वैसे ही 0 कर देगा, तो बची ये दोनों टर्म्स। क्यों ये दोनों टर्म्स क्यों बच गई? इनकी वजह से क्यों पॉजिटिव आंसर आएगा? अब मुझे गरिमा के अलावा कोई बताए कि इन दोनों की वजह से क्यों पॉजिटिव आंसर आएगा, मतलब क्यों इफिनिट आंसर आ रहा है, 0 क्यों नहीं हो भैया रहा? ए हाँ? प्लस तो फिर इसको 1 बनाएगा, और फिर ए माइनस 0 बनाएगा, फिर और 0 0 फिर 1 हो जाएगा। और सब दूसरे समझ रहे हैं केस में आकिब की बात को? हाँ, दूसरा केस भी यही है। सब आकिब की बात को समझ रहे हाँ हैं? हाँ भैया। सबको ये बात I क्लियर है? didn't get. ओके, यू डिड। No, no. तो ये देखो, व्हाट इज एन एक्शन ऑफ a प्लस ऑन दिस 0? दिस इज अ रेजिंग ऑपरेटर। तो a प्लस 0 को जब एक्ट करेगा तो उसको 1 बना देगा, और एक बार और करेगा तो 2 बना देगा। और जब तुम पीछे से 0 लेकर आओगे, ये वाला 0, तो दिस इज 0। Yeah, yeah. So in this case what happen is, one time you are increasing it and one time you are decreasing it, so ultimately it is 0. So 0 and 0 don't give you the 0 answer, it gives you the 1. 1. Okay, so let's now carefully find this, but what is an answer we are getting? तो ये 0, ये माइनस को मैं बाहर लेकर प्लस कर देता हूँ। चलो अब पहले तो ये निकालते हैं। सबसे पहले 0 एक्ट करवाओ जी, a माइनस एक्ट करवाओ जी। 0 हो गया? यस हाँ भैया। हाँ भैया। अब ये करो, ये √1 आ गया, √1 आ गया, 0 0, आंसर आ गया 1। तो तुम्हारे पास पी स्क्वायर का मीन आ रहा है h कट m ओमेगा बाय 2। ये स्टेप समझ आया है? Yes, भैया. सोच करो, खुद से करो, देखो मत, खुद से करो। भैया जब ए माइनस 0 पे एक्ट होगा ना, तो ये इसको -1 बना देगा उस टाइम, और फिर ए प्लस 0 वापस लाएगा। हार्मोनिक ऑसिलेटर में -1 होता है? वो अगर होता भी हो तब भी मैं मान रहा हूँ होता भी है। चलो, तो a माइनस n का फॉर्मूला क्या है? तो जब तुम 0 पे एक्ट करोगे तो ये तो वैसे ही 0 हो गया। हाँ तो भैया, यहाँ पर अगर -1 है भी तो आंसर तो तब भी 0 आना है। हाँ भैया, ठीक है ठीक है। ठीक है जी, पी स्क्वायर आपका ये आ गया है। तो अब मुझे बताओ डेल्टा Can पी you क्या है? please repeat that thing? दिस यू हैव टू डू कैलकुलेशन। ओके, दिस इज अ कैलकुलेशन पार्ट, दिस इज ओनली कैलकुलेशन you need to Can do. you please repeat that thing, please? Which part? This ना? Yeah. हाँ, तो ये पार्ट क्या बोल रहा है? फर्स्ट टू एक्ट a प्लस ऑन 0, what we will get? Now tell me the answer, what will you get? What? Now you act a minus on 1, what do you get? This is 0. Now you do 0 by 0, what do you get? 1. Okay, so what I wrote. Okay. Okay, now let's find out delta p. It is, तो ये इसका आंसर क्या आया था? 0। 0। अब डेल्टा पी और डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई करवा देते हैं।
2h कट बाय mc मिनिमम अनसर्टेनिटी लेकर चल रहा हूँ मैं। क्यों? कोई बता सकता है मिनिमम क्यों ली? क्योंकि हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी एनर्जी डिफरेंस। चाहिए। ठीक है जी, तो मिनिमम चाहिए, ज़्यादा भी चाहिए हो सकती है, लेकिन मिनिमम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या हम यहाँ से, अब तो इजी क्वेश्चन हो गया ना ये, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तुम यहाँ से ओमेगा निकाल सकते हो ना, ये एच कट काट दो, यस भैया, यहाँ से तुम एच कट ओमेगा तो निकाल ही सकते हो। यस भैया। यस। तो एच कट ओमेगा जो भी तुम्हारा आंसर आएगा, तुम्हें आंसर एच कट ओमेगा ही चाहिए। वो आंसर करके यहाँ पर जो भी नंबर आएगा इन टर्म्स ऑफ ये एम सी स्केयर निकालना है बस। एम सी स्केयर भी आ ही रहा है, तुम यहाँ से इजीली देख सकते हो। जब स्केयर करोगे, यहाँ पर स्केयर करोगे जब, ठीक है, जब तुम स्केयर करोगे तो ये सी स्केयर बन जाएगा, ठीक है, ये एम स्केयर हो जाएगा। यहाँ पर एक एम है तो ये एम कट गया, एम सी स्केयर इधर आ जाएगा। ठीक है जी, इजी है जी। सर Yes, मिनिमम भैया। अनसर्टेनिटी की वजह Yes, से भैया। एनर्जी भी अनसर्टेनिटी होगा ना, मतलब सिस्टम भी स्टेबल होगा ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सिस्टम स्टेबल ही है। अनसर्टेनिटीज का मतलब सिस्टम अनस्टेबल होना थोड़ा होता है। अच्छा। देखो, अनसर्टेनिटीज का क्या मतलब होता है कि तुम इतनी प्रिसीजन से ज़्यादा उसको दोनों को एक साथ मेजर कर सकते हो। ठीक है, Yes. मेजरमेंट प्रोसीजर में प्रॉब्लम होती है, वो आप मतलब मेजर नहीं करने दे रहा क्वांटम मैकेनिक्स आपको। ये थोड़ा वो अपने आप में तो अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है, स्टेबल Okay, अनस्टेबल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल थोड़ा डिसाइड करती है। ठीक है, okay सर। तो यहाँ से तुम एच कट ओमेगा निकाल सकते हो और आंसर तुम्हारा निकल जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं बहुत हैरानी की बात बताता हूँ कि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन मुझसे आइजर भोपाल की इंटरव्यू में पूछा गया। समझ रहे हो? आइजर भोपाल की इंटरव्यू में ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पूछा गया था। उन्होंने बोला कि आपको डेल्टा एक्स दिया है और आप कैसे निकालोगे एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द सिस्टम, ऐसा बोला था। तो ठीक है, और देखते हैं, और हम देखते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स का ऑपरेटर फॉर्मुलेशन से कुछ चाहिए आपको। ओके, सो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है ना, जैसा हमने किया है। Yes, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है ना, same. बस ए बी की Yes. जगह सी नॉट सी वन दे दिया। अब मुझे नहीं पता कि ये जैम ने ही, उन्होंने ही डाला है या थोड़ा जिन्होंने, जिनसे मैंने कॉपी किया है फिजिक्स से, उनकी गलती है, पता नहीं है, ये जस्ट का ही। चलो अब ये क्वेश्चन पे आओ। तो कंसीडर अ हार्मोनिक ऑसिलेटर इन दिस स्टेट, बड़ी गंदी सी स्टेट दे दी आपको, लेकिन कोई बात नहीं, जीरो और वेयर जीरो इज, मतलब कि ये जो अगर कुछ है आगे है कुछ और दिस जीरो इज अ ग्राउंड स्टेट, a plus is a raising operator, alpha is a complex number, what is the probability that harmonic oscillator is in nth eigenstate? इसको तो छोड़ ही दो भाई, ये पता कैसे होगा वैसे? ये देखो, ध्यान से देखो ये स्टेट को, ये क्या है? एक्सपोनेंशियल। अब तुम एक्सपोनेंशियल को इसके ऊपर कैसे एक्ट करवाओगे? सीरीज को तो सीरीज में एग्जैक्टली, तो आप इसको कैसे खोलोगे? तो ये एक्चुअल में कौन क्या स्टेट है ये? ए प्लस स्क्वायर को दो बार एक्ट कराओगे तो क्या आ जाएगा?
2 की। तो तुम्हारे पास एक्चुअल में स्टेट क्या है, ये है, ये स्टेट तुम्हें दे रखी है। अब तुमसे पूछा कि व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट हार्मोनिक ऑसिलेटर इज इन द आइगन स्टेट n, तो क्या तुम जनरल स्टेट निकाल सकते हो यहाँ से, जनरल स्टेट क्या आ रही है? यस भैया। इसके लिए एक बार थर्ड स्टेट भी लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अल्फा टू द पावर n बाई n रूट n। एक बार थर्ड भी लिख लेते हैं। यहाँ पे मतलब 2 फैक्टोरियल आ रहा था, यहाँ पे अब क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल का वो आ जाएगा। तुम खुद करके देखो यार, अगर इसके ऊपर एक बार और लगा दूं मैं तो √2 तो आएगा ही, √3 भी आ जाएगा और 3 आ जाएगा। √3 भी आ जाएगा। तो ये क्या है, 3 फैक्टोरियल। तो अगर मैं बोलूं कि इस स्टेट को, ये स्टेट क्या स्टेट है इन जनरल, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा रेज़ टू पर पावर n रूट n फैक्टोरियल का अंडर रूट, और यहाँ पर क्या आएगा n। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये nth स्टेट में है, तो वो कैसे फाइंड होती है? उसका मतलब ग्राफ के मल्टीप्लाई कर ग्राफ n नहीं देखो, ये आंसर होगा, मतलब स्क्वायर भी तो होगा ना उसमें। हाँ स्क्वायर। आप सबको क्या पता है कि अगर मैं बोलूं कि आपको कोई वेव फंक्शन दे दूं किसी भी इन्फिनिट वैल्यू के लिए ऐसा, और आपसे मैं बोलूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि ये 0 to L/4 के लिए, तो ये सबने किया है। यस भैया। यस भैया। हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन और 0 to डिवाइडेड बाय नॉर्मलाइज आपका होना चाहिए, ये कंपलसरी है कि नॉर्मलाइज हो, नहीं है तो डिवाइड करो, क्योंकि अगर तो ये नॉर्मलाइज ही होता है, तो इस वजह से हम इसको लेते नहीं। ये किया है आपने, ये इनफैक्ट एक्चुअल में क्या चीज है, ये कुछ भी नहीं है, ये 5 का होल स्क्वायर। यस। ठीक है, 5 नहीं, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर आएगा 5, मतलब कि जो स्टेट में आप चाहते हो, और ये है आपकी जो स्टेट है। आप उल्टा भी कर सकते हो क्योंकि स्क्वायर है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब मुझे बताओ, आप चाहते हो n स्टेट में, तो आपको करना क्या पड़ेगा, n ये करना पड़ेगा, कर लो। equal to n upon n factorial। भाई ये हमेशा नहीं होगा ना, ओ एन बिल्कुल सही ओवर बात, n बिल्कुल सही बात। यहाँ पर समीशन नहीं आएगा ना फिर, क्योंकि एक ही टर्म एग्जिस्ट कर रही है, राइट। सिर्फ एक टर्म एग्जिस्ट करेगी, बाकी सारी समीशन की टर्म्स उड़ जाएंगी। वेरी गुड मौसम, वेरी गुड। ओके, तो ये क्या आ गया आंसर, तो क्या है ऐसी कोई ऑप्शन? ये सारे समझे बात को, क्वेश्चन को समझ, मतलब कुछ बच्चे तो समझ गए, मैं समझ सकता हूँ कि कुछ नहीं समझे, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। देखो इतनी जल्दी क्वांटम पढ़ाना, मतलब आप बोलोगे कि कैसे पढ़ा रहा है क्वांटम, ठीक है इतनी जल्दी पढ़ाना गलत है, लेकिन क्या कर सकते हैं। मैं खुद चाहता हूँ कि आपको हर एक टर्म का मैं मतलब बताऊं, लेकिन कौन कौन समझा है, ऑनेस्टली बताओ कौन कौन समझा, समझ में, और कौन नहीं हाँ समझा, भैया। ऑनेस्टली बताओ कि मुझे समझ नहीं आया, प्लीज टेल मी कि नहीं सर क्या हो जो रहा है। समीशन आपने हटाया ना वो समझ में नहीं आया भैया, जो समीशन आपने हटाया वहां से वो क्यों हटा वो समझ में नहीं आया। ये देखो जब मैंने यहाँ से n लेकर आया पीछे से, ठीक है, n कुछ एक ही नंबर लाओगे ना, मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज इन स्टेट n, या मान लो 1, ठीक है, तो एक ही नंबर के लिए एग्जिस्ट करेगी ना ये n, जब n 1 होगा तभी ये 1 होगा ना, बाकी सबके लिए तो 0 है। हाँ हाँ भैया ठीक।
ठीक है, ये एक्चुअल में जब तुम सबमिशन करोगे, इसका सबमिशन करोगे तो कैसा सबमिशन तुम्हारा दिखेगा, कैसा 1 1 प्लस 1 2 1 3, हाँ भैया, बाकी टर्म सारी 0 होंगी। तो सबमिशन हट जाएगा फिर। चलो और देखते हैं और कुछ है जहाँ पर चलिए अब ये क्वेश्चन रीड करो। क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल हैज इनिशियल वेव फंक्शन ये। तो आप देख रहे हो कि तीसरी बार हो गया है जब उन्होंने ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का सबमिशन किया है, सुपरपोजिशन दी है। मतलब ये सब कह रहा है कि m को 1 मान लो, h कट को 1 मान लो फॉर द ऑसिलेटर। को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है पार्टिकल की। अच्छा ये रहने दो, इसके लिए अभी मैंने फॉर्मूला नहीं बताया आपको, ये फॉर्मूला भी बताता हूँ। इसके लिए टाइम वो लिखना पड़ेगा, वो फॉर्मूला भी बताएंगे। ठीक है, तो यही इतने ही क्वेश्चन थे हार्मोनिक ऑसिलेटर के जहां पर तुम्हें वो यूज करना था। ठीक है जी, इतने ही क्वेश्चन थे। चलो अब ऑन द सेम लेवल कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि जिनके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, बस सेम लेवल पे और हो जाएंगे। ये अभी जस्ट मैंने बताया ना, पार्टिकल है। ऐसा क्वेश्चन मान लो आपको दे दिया गया कि पार्टिकल है किसी स्टेट में, इज इन द nth एनर्जी आइगन स्टेट ऑफ इनफिनाइट वन डायमेंशन पोटेंशियल वेल। तो अब मैं एक आदमी से कुछ किसी को पूछता हूँ, रितिका तिवारी, कैन यू टेल मी दैट व्हाट इज द आइगन स्टेट ऑफ एन इनफिनिट पोटेंशियल वेल इन nth स्टेट। ट्राई करो रितिका। गलत बता दो, कोई बात नहीं। Sir, can you repeat the question? क्वेश्चन ये कि आपको इनफिनिट पोटेंशियल वेल दिया है, आपको उसका आइगन स्टेट्स बताने हैं। पता होंगे ना आइगन स्टेट्स? Yes, sir. हाँ बताओ। कुछ साइन वाला होता है आंसर। Sir, root 2 by L sin n pi x by 2L. साइन n पाई x बाई एल, ठीक है जी, ये होता है। अब आपसे पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको हम x इक्वल टू 0 टू 1/3 के बीच में फाइंड कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन फाई स्क्वायर। ये तो सबको पता है कि वेव फंक्शन का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है तुमने, कहाँ से कहाँ तक, 0 टू 1/3 तक, फाई स्क्वायर dx। कर दो इसको। भैया L/3 आएगा वहां पे, मतलब मिस किया है, 1/3 नहीं है। ठीक है, L/3 लो जी, 2/L साइन स्क्वायर n पाई x बाई एल dx। क्या इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हो? ओके महक, Yes, भैया। महक कैन यू गिव मी द आइडिया हाउ यू कैन सॉल्व दिस इंटीग्रल? L/3 है। बताओ। बता दो यार, इंटीग्रल ये बहुत सिंपल इंटीग्रल है। आंसर नहीं बताना, बस तरीका बताना है। महक बताओ, सोचो थोड़ा सा।
ऋषिराज बताओगे यार? x/2 cos बाई थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है जी, फॉर्मूला Cos होता है बाई cos 2x। तो ये फॉर्मूला यूज करके ये इंटीग्रल को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे करते हैं। अब ये तो मैं समझता हूँ कितनी बारी हो चुका है। तो ऐसा करते हैं करवाने से अच्छा कि आप ऐसा करो, पहला क्वेश्चन छोड़ दो, बस पहला क्वेश्चन छोड़ दो। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, वो मैं आपको करवाऊंगा। सेकंड दोबारा से करो, थर्ड दोबारा से करो, चाहे आपने कर लिया है फिर भी दोबारा से करो, हर फॉर्मूला के मतलब को समझो। फोर्थ क्वेश्चन दोबारा से करो, फिफ्थ आपका हो जाएगा। इसमें क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ही निकालनी है, उसका फॉर्मूला आपको दे चुका हूं। मोस्ट प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, पहले प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालो 5 स्क्वायर करके। अब देखो कि dp बाई dx कहां पर जीरो है, वो जिस भी पॉइंट पर जीरो है वो तुम्हारा मोस्ट प्रोबेबल पॉइंट है। फिफ्थ दोबारा से करो, सिक्स्थ को अभी के लिए छोड़ दो। ठीक है, सेवंथ के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सेवंथ जो क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन इजी लग सकता है लेकिन ये इजी है नहीं। कोई बता सकता है क्यों इजी नहीं है? जिसमें x भी और y भी है। नहीं वो तो ठीक है, आपने डीजेनरेसी इन 2 डायमेंशन तो पढ़ी है ना हार्मोनिक ऑसिलेटर में। भैया यहाँ पे कर्व के सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस का यहाँ पे बात किया गया पोटेंशियल में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो क्या है, ये हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर है, समझ रहे हो? दूसरी साइड पे ये इसमें इन्फिनिटी r दे को है, बैक नेगलेक्ट। दूसरी साइड पे ये इन्फिनिटी दिया है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, चलो हम अपनी वापस आते हैं एक उसके ऊपर। तो आपको फिजिकली समझाता हूँ कि क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में। कहाँ गया वो? what was the answer of question number 4? क्या बोल रहे हो? What was the answer क्या of था question number 4? आंसर आई डोंट फोर्थ क्वेश्चन रिमेम्बर। कौन सा? अच्छा फोर्थ तक, वो आपको बोला है ना कि फाइनल आंसर निकाल लो, मैं निकाला नहीं है, आपके सामने ही है। Okay. 1250 आया है। अरे यार वो मिल नहीं रहा, दोबारा कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब मुझे दोबारा से वो वेव फंक्शंस ड्रॉ करवाओ हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। फर्स्ट का नोड कहाँ पर है? फर्स्ट का एंटी नोड था यहाँ पर, ठीक है। सेकंड का नोड था यहाँ पर, नीचे से बनेगा। ठीक है। अब मुझे ये बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर दीवार लगा दूं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल ऑन लेफ्ट ऑफ दिस? जीरो। इन्फिनिट वेल में जब यहाँ पर इन्फिनिट होता है तो यहाँ पर तो वॉल्स पे तुम क्या मानकर चलते हो? पोटेंशियल इज इनफिनिट। तो यहाँ पर वेव फंक्शन को जीरो मान लेते हो, बाउंड्री कंडीशन लगाते हो ना, f इक्वल्स टू x इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर भी होगा। तो जो तो वेव फंक्शन n इक्वल्स टू 1 है वो तो इस चीज को नहीं सेटिस्फाई कर रहा ना। यस सर। तो हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होता है, n इक्वल्स टू 1
सॉरी ये n इक्वल टू 0 है, n इक्वल टू 0 2 4 6 वैनिश हो जाते हैं, वैनिश खत्म हो जाते हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करते। ओनली n इक्वल टू 1 3 5 7 एग्जिस्ट कर पाते हैं। अब तुम जब डीजेनरेसी निकालो, अब ये क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द डीजेनरेसी ऑफ द एनर्जी स्टेट एन एच कट ओमेगा, एन एच कट ओमेगा। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या है? पहली स्टेट कौन सी एग्जिस्ट कर रही है? हाफ एच कट ओमेगा ना, n इक्वल टू 0 एग्जिस्ट नहीं कर रही। 0 एग्जिस्ट कर रही। यह 1 1 होगा, nx इक्वल टू 1 ny इक्वल टू 1। जो पहली स्टेट एच कट ओमेगा 3/2। हाँ, जो पहली स्टेट एग्जिस्ट कर रही है वो n इक्वल टू 1 एग्जिस्ट कर रही है, उसकी एनर्जी है 3/2 एच कट ओमेगा। सेकंड कौन सी कर रही है? 3, इसकी एनर्जी क्या है भैया? 9/2। 3/2 नहीं आएगा भैया, वहाँ पे +1 आता है ना इस केस में। चल तो क्वांटम क्वांटम केस नंबर में क्या होगा फिर? 2 आएगा भैया, 2 एच कट ओमेगा। तो यहाँ पर क्या भैया करूँ? 3 भैया 3 आएगा इसके केस में, 3 एच कट ओमेगा। भैया n इक्वल टू 1 nx प्लस ny प्लस 1 एच कट ओमेगा होता है। 1 आता है, हाफ प्लस हाफ करके 1 आता है। ny प्लस 1 एच कट ओमेगा, तो 1 1 भैया पुट इसको कर 9 के साथ इक्वेट कीजिए ना, डायरेक्ट आ जाएगा। क्या करूं? भैया अगर हम इसको 9 एच कट ओमेगा से इक्वेट करेंगे ना, तो nx ny की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। फिर हम डायरेक्टली इनकी खाली ऑड वैल्यूज मैच कराएंगे और उनकी फिर डिजेनरेसी देखेंगे। ये बोल रहे हो? यस भैया। ठीक है, आपकी कह रहा है ये होगा। ठीक है जी, यहाँ तक सब ठीक है। पर यहाँ पर n इक्वल टू 0 नहीं ले रहे, मतलब जो आपने ग्राफ से बताया वो वाला है क्या कंडीशन? नहीं, वहां पर ये आ रहा हूँ मैं, वहीं पर आ रहा हूँ। पहले इतना बताओ, ये तो ठीक है ना? पहला स्टेप। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि nx और ny जो हैं वो 0 2 4 वैल्यूज नहीं ले सकते, ये बोल रहा हूँ। तो अब कितने तरीकों से तुम इनको ऐड करके 8 बना सकते हो? एक तो 1 7 कर दो, 7 1 कर दो। 2 6 नहीं कर सकते, 5 3 5 3 कर दो, और 4 3 5 4 4 नहीं कर सकते। हाँ, और क्या करोगे फिर? ये पूरी और कुछ कर सकते? बस नहीं, सोच। बस ठीक है, 0 8 भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या आ गया? 4। ठीक है जी, ठीक है, कर दिया आकिब जी। यही मानते हो आप भी? यही कह रहे थे? हाँ भैया ठीक है, तो फर्स्ट और सिक्स्थ क्वेश्चन छोड़ के तुम्हें 7th क्वेश्चन तक अच्छे से दोबारा करना है। ठीक है, अब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला चाहिए, और ये फॉर्मूला हर साल रिपीट हो रहा है। मतलब मुझे लगता है कि हर I didn't get how only odd numbers are allowed. Okay, no problem. So do you agree that these are the wave functions for the first few states in harmonic oscillator? Now I said it is a half harmonic oscillator, so this is given as this. On all this side potential is infinite, so what will be the value of wave function on this boundary whenever Infinite. 0? Wave function will be 0, potential will be infinite. Yeah. So for which states wave function is 0? Is it 0 for n equals to 0? No. For n equals to 1? Yeah. So that is why n equals to 1 3 5 7 are allowed and others are not allowed. Okay, thank you. Okay, so for this question, 8 question, how if I say
at this time t equals to 0 wave function I give you, and now I say at some time after time t what will be the wave function. That is calculated by some very simple formula which I will give you tomorrow, and we will solve problem based on that. Okay, now let's see who can solve question number 9. It is a very simple question, and question number 10 you can also do. Try to do these questions. Okay, 11 you can leave. 12th question you can try. 13 is done. 14th question again the same formula is needed. 15th question again I think the same, the minimum energy it involves, yes, it also needs the same formula. 16 you should do again. This question you can also try. This you need again the same formula. 19th question you need the same formula. 20th question you can try. 21st you leave for now. So out of these 21 questions, please try these questions. Please try, or whatever questions are already discussed in class, at least try to understand them again. Write in a proper way. Open the Jet Li book, chapter 2, chapter 3. Open the book, go to the solved examples, and see what are the type of the questions which are exactly matching with these questions, and then solve those questions also. If you will do this exercise today, whatever you have learned in class, whatever formula, at least 5 or 7 formulas you have learned, you will get a good grasp of that formula. What we are trying to do is from class 1 is whatever formula we have, we at least have 10, 20, 30 extra formulas from other students. So that is what we are trying to do. So if we can apply those formulas, that will be very nice. And there will be only 2 more classes on quantum mechanics. Tomorrow will be on one dimension potential, and then last is on the perturbation and 3D states, spin, etc., angular momentum problems. Or if I need to do, I will take one more. So up to 5 we can expect that our quantum mechanics will go on. भैया one question था आज की क्लास में. Can you say which book to clear the doubts of concept for quantum mechanics? Jet Li. Jet Li. Okay. Griffith is, I think, little hard for a new student. हाँ मौसम पूछ लो क्वेश्चन. हाँ भैया, वो जो क्वांटम हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए जो आपने स्टेट डिफाइन किया था, वेव फंक्शन ड्रॉ किया था, वो एक्स स्क्वायर का जो पैराबोला है उससे बाहर चला जाता है, बट क्लासिकली वो बाहर नहीं जाता है. तो उसके लिए रीजन क्या था, मैं भूल गया था, आप थोड़ा याद कर दीजिए. मतलब वो पेनिट्रेट हो जाता है ना, उसके लिए नहीं. वो क्यों होता है? हाँ पेनिट्रेट नहीं, देखो पेनिट्रेट नहीं हो रहा, वो समझो बात को. हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्वांटम मैकेनिकली वो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कहीं पर भी जा सकता है. कोई रिजिड बाउंड्रीज नहीं है कि इसी के बीच में रहना है उसे. ठीक है, समझते हो? ये कोई रिजिड बाउंड्रीज तो नहीं है, ये तो पोटेंशियल ड्रॉ किया है ना मैंने बस. हाँ, कोई रिजिड बाउंड्रीज तो नहीं है. अब क्या होता है क्लासिकल मैकेनिकली, क्या होता है आपका एम्पलीट्यूड हाफ के ए स्क्वायर, मतलब कि तुम्हारा एक्स किसके बीच में रहता है, इसके बीच में. हाँ. ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड है. क्या तुम्हारा एक्स एम्पलीट्यूड से आगे जाता है कभी भी क्लासिकल मैकेनिक में? नहीं. लेकिन क्या होता है ये आंसर तुमने एक्चुअल में ना हिंट दे दिया बाकी सबको, जो मैंने सोचने के लिए बोला था. समझ रहे हो? अब एक तरह से वो आंसर सॉल्व हो गया. चलो अच्छी बात है, सॉल्व हो गया. तो ये देखो, इससे अंदर अंदर रहेगा, एम्पलीट्यूड्स के विद इन रहेगा. लेकिन क्या होता है क्वांटम मैकेनिकली प्रोबेबिलिटी अगर तुम फाइंड करोगे ना, आउटसाइड द
आउटसाइड दिस एम्पलीट्यूड, वो कैसे फाइंड करोगे? मतलब विद इन द रीजन फाइंड कर लो और उसको 1 से माइनस कर दो, है ना? हाँ तो तुम्हें प्रोबेबिलिटी टू एग्जिस्ट आउटसाइड द बॉक्सेस मिल जाएगा, मतलब आउटसाइड दिस एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। तो वो जो है पॉजिटिव नंबर, सम नंबर आता है। इस वजह से आउटसाइड द एम्पलीट्यूड, मतलब मान लो कि तुम्हारा ऐसा है, तो क्या है, एम्पलीट्यूड यहाँ तक जा रहा है, तो क्लासिकली यहाँ और इन दोनों रीजन्स के बीच में ही ऑसिलेटर ऐसे ऐसे ही करता रहेगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली ऐसा कुछ नहीं है, क्वांटम मैकेनिकली वो यहाँ तक भी जा सकता है, यहाँ तक जाने की भी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो वो पोजीशन में अनसर्टेनिटी है, इसलिए हम क्लासिकल में वो पोजीशन सर्टेन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, मतलब मेजर कर लेते हैं, बट क्वांटम मैकेनिकली वो नहीं कर सकती, इसलिए वो बाहर जाता है। नहीं देखो क्या है, जैसे होता है ना, एनर्जी तुम्हारे पास कम है, ये मतलब फिनाइट पोटेंशियल वेल की अगर मैं बात करूं, फिनाइट पोटेंशियल वेल में भी सेम चीज होती है। एनर्जी तुम्हारे पास कम है, मतलब यहाँ पर जो एनर्जी है V इज ग्रेटर देन E, है ना? तो तुम बाहर नहीं जा सकते, बट स्टिल देयर इज सम प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द पार्टिकल हियर। तो इसको तुम कैसे एक्सप्लेन करते हो? सेम रीजनिंग यहाँ पर है कि एम्पलीट्यूड से बाहर जाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होती है। इसका फंडामेंटल रीजन मुझे लगता है शायद टनल वनल करता होगा या कुछ ऐसा करता होगा। हाँ भाई ठीक है। हाँ ठीक है भाई, थैंक यू। भैया आपने एक फॉर्मूला यूज